गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ? ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਈਐਲਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर all the students who are preparing for bank exams, any center level, state level exams, IELTS or spoken English. Okay, so we will start the video and I will try to cover all the tenses in this single video, and if we left any one, then I will cover that in the next part. Okay, ਓਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਟੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਬਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ। ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ। ਟੈਂਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Another one is continuous, perfect and perfect continuous। and ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਔਰ ਫੋਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲਵਾਂਗੀ? ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਦੇਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ, ਐਮ, ਆਰ ਪਲਸ V1 ਪਲਸ ING। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ। ਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗੂਲਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਲੂਰਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ, ਵੀ, ਯੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ V1 ਪਲਸ ING ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲਸ ING। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ V1 ਪਲਸ ING ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਕੇ, ਐਵਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਪਲਸ ING ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, I am studying। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, she is studying। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, they are studying। ਓਕੇ,
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੱਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ V1 plus ing she ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ is ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ are ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਸੀ I ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ am ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ I am not studying she is not studying they are not studying okay so next मेरा पार्ट आ जाता है present indefinite present indefinite कदों यूज होता है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕਸ ਹੌਬੀਜ਼ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੈਕਟਸ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੀ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ V1 plus S ਜਾਂ ES और अगर प्लूरल है तो फिर क्या आंदा है अगर प्लूरल की मतलब दे है वी है आई है या दो पर्सन है राम एंड श्याम तो फिर क्या आंदा है ओनली V1 यही गल अगर मैं नैगेटिव च करा तो की आ जाएगा सिंगुलर विच डज नॉट प्लस V1 तो इत्थे की आ जाएगा प्लूरल च डू नॉट प्लस V1 एग्जाम्पल देखते सेंटेंस दे नाल ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ he goes to school ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ V1 they go to school ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ he does not सिर्फ V1 he does not go to school मतलब डज नॉट डू नॉट सिर्फ V1 आएगी नेगेटिव च दे डू नॉट गो टू स्कूल और अगर आ जाए इंटेरोगेटिव तो फिर की आ जाएगा डज आ जाएगा अगे फिर आ गया सब्जेक्ट फिर आ जाएगा गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क डू दे गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ is mr plus v1 plus ing ਵੇਟ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ v1 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚ is mr plus v1 plus ing ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ is I ਦੇ ਨਾਲ am ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ are ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ he she it ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ v1 plus s or es एंड प्लूरल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਵੀ ਆਈ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲੀ V1 ਓਕੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਲਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that is present perfect ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੈਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲੂਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਵੇ V1 plus ing ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ V3 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ he has
ईटन द फूड, वो खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन द फूड। ठीक है, ही की सी सिंगुलर तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਈ हैज, और दे की है प्लूरल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ हैव। और अगर मैं नेगेटिव च लिखा तो की आ जाएगा he has not eaten the food, eat, ate, eaten, eaten की है verb दी थर्ड फॉर्म, he has not eaten the food, they have not eaten the food। क्लियर। और अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो हैज ही ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क, हैव दे, डबल ई नहीं है, एक ई है, THEY, ओके, हैव दे ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। देन उस तो बाद मेरा टेंस आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस विच की यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। पास्ट कंटिन्यूअस विच यूज होएगा was, were प्लस V1 प्लस ING। जिदा कंटिन्यूअस दे विच V1 प्लस ING आना ही आना है। was आ जाएगा सिंगुलर्स दे नाल एंड were आ जाएगा प्लूरल्स दे नाल। वो खाना खा रही सी तो की आएगा she was eating the food। वो खाना खा रहे सन, they were eating the food। सो क्लियर हो गया। she सिंगुलर और ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ गया was, V1 प्लस ING, eat की होंदी फर्स्ट फॉर्म, they है प्लूरल ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ गया were ते प्लस V1 प्लस ING। अगर मैंने नेगेटिव च लिखा तो की आ जाएगा she was not eating the food, they were not eating the food। इंटैरोगेटिव च किद्दां लिखांगे कि वो खाना खा रही सी, पास्ट विच जिहड़ा काम कंटिन्यू चल रहा सी उत्थे आंदा पास्ट कंटिन्यूअस। was she eating the food, were they eating the food। सो तुसी ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर हुण तक चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या वीडियो ਨੂੰ शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के नाल, सो प्लीज़ सबसक्राइब दिस चैनल बिकॉज बहुत सारी वीडियोज़ मैं होर भी लैके आवांगी। एंड इफ यू विल सबसक्राइब दिस, सो इफ यू विल सपोर्ट मी आई विल सपोर्ट यू टू। ओके, अब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ ये लैके आवांगी, IELTS, स्पोकन इंग्लिश या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वास्ते तुहानूं चैनल को सबसक्राइब करना पैना। ओके, नैक्सट मेरा आ जाता है, यह हो गया पास्ट कंटिन्यूस। दैन आ जाएगा पास्ट इनडेफिनिट। सारे किते जिन्ने भी तुसी राइटिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है, पास्ट इनडेफिनिट बहुत ज़्यादा यूज होएगा। पास्ट इनडेफिनिट अगर तुसी क्यू कार्ड कर रहे हो ना, क्यू कार्ड है वो तो आना ही आना क्यू कार्ड के पास्ट इनडेफिनिट, क्योंकि वो पुछते ही तुहाडी लाइफ की किसी चीज़ के बारे है तो उस पास्ट इनडेफिनिट ही आना, तो क्यू कार्ड के वास्ते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इत्थे यूज़ की करते हैं आप V2, ओनली V2, भावें वो सिंगुलर है भावें वो प्लूरल है, मेरा आना की है V2 ओनली। लाइक आई वेंट टू स्कूल, मतलब पास्ट इंडेफिनिट जिहड़ा काम पास्ट विच रूटीन नाल हुंदे सी उत्थे क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। वेंट की दी सेकंड फॉर्म होंदी है गो दी, गो वेंट गोन। ठीक है, यह मेरा सिंपल रूल है, V2 लगना है भावें सिंगुलर होए तो भावें प्लूरल होए। V2 कल्ला ही आंदा, इहदे नाल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आना। अगर नैगेटिव विच आ जाए तो उत्थे रूल थोड़ा जिहा चेंज हो जाता है, डिड नॉट प्लस V1 आ जाएगी। ओके, डिड नॉट प्लस V1, जिथे डिड नॉट प्लस V1 है उत्थे V2 नहीं आनी, ते जिथे V2 है उत्थे डिड नॉट नहीं आना। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता सी। दे
डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते सन। जिदा प्रेजेंट इंडेफिनिट च असी कि सिंगुलर दे नाल आएगा डज नॉट ते प्लूरल दे नाल आएगा डू नॉट, पर ये इदां दा कोई रूल नहीं है। ये भावें सिंगुलर है भावें प्लूरल है। सिंपल दे विच V2 आनी है, नैगेटिव दे विच डिड नॉट ते प्लस V1 आना। ओके, और अगर सॉरी इंटैरोगेटिव आ जाए तो की आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल या फिर डिड दे गो टू स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट का रूल पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब की होंगे जो काम पास्ट शुरू होया सी ते असर भी पास्ट तक सी, प्रेजेंट तक वह कोई असर नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब की सी पास्ट काम शुरू होया पर प्रेजेंट च भी वह असर है, पर पास्ट परफेक्ट पास्ट शुरू होया पास्ट ही खत्म हो गया। लाइक वो खाना खा चुका सी, मतलब उदों ही उन्हें खाना खादा तो उदों खा चुका सी, ਉਹਦੇ बारे गल पहले हो चुकी है। पर जे कहने आप वो खाना खा चुका है मतलब उन्हें खाना पहले खादा बट हले भी उस चीज़ बारे कोई पूछ रहा है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट विच की यूज होता है हैड प्लस V3। परफेक्ट सारे विच की यूज होना है V3 वर्ब दी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट विच हैज है प्लस V3। पास्ट परफेक्ट विच वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल हैड ही यूज होना है। आई हैड ईटन द food, they had eaten the food। I had eaten the food, मैं खाना खा चुका सी। they had eaten the food, वो खाना खा चुके सन। नेगेटिव च क्या आएगा, I had not eaten the food, they had not eaten the food। इंटैरोगेटिव च की आ जाएगा, हैड अगे आ जाएगा सब्जेक्ट उस तो बाद, हैड आई ईटन द फूड। वैसे आई विच इंटैरोगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि असी अपने बारे थोड़ी ना किसी ने पूछांगे, सानू ज़्यादा पता है। हैड दे ईटन द फूड। सो जिन्होंने चैनल वाले तक सबसक्राइब नहीं किया ना प्लीज़ कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर भी करना है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। मेरे दो रूल्स जोड़े पूरे हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट। हुण मेरा केड़ा रूल रह गया, फ्यूचर। फ्यूचर इज वेरी सिंपल, सिर्फ विल लगाना, शैल हूँ आप कितना नहीं यूज करते। पहले आप करते सी विल शैल दोनों यूज, विल आंदा है बाकी सारे दे नाल, शैल आंदा है आई वी दे नाल, बट हुण हर जगह की यूज होएगा ओनली विल। पहले मैं सब तो पहले गल करदी हां फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट विच क्या आएगा, विल प्लस V1। मैं कल दिल्ली जावांगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली नहीं जावांगा, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। कि वो कल दिल्ली जाएगा, विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट, मतलब अगर कोई काम फ्यूचर विच होने लगा तो इत्थे की आ जाएगा विल प्लस V1। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। उस तो बाद आ जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर वीडियो एंड तक देखियो क्योंकि एंड विच मैं तुहानू हुणे दसना है कि पंजाबी तो इंग्लिश सेंटेंस किद्दां बनाना। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस विच क्या आएगा, हुण कंटिन्यूअस है V1 प्लस ING आना ही आना, विल बी प्लस V1 प्लस ING। कल वो पढ़ाई कर रहा होएगा, ही विल बी स्टडिंग टुमारो। ਇਹਦਾ मतलब की है, कल वो पढ़ाई कर रहे मतलब कल जो मैं उत्थे जावांगा या मैं उन्होंने मिलांगा, जो वो बारे गल कर रहे होगा उस टाइम तो काम कंटिन्यूस चल रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग टुमारो। हुण इत्थे नॉट किद्दां लाना विल बी दे विच, उन्होंने देखो ही विल तो बाद आएगा नॉट, नॉट तो बाद आएगा बी। ही विल नॉट बी स्टडिंग टुमारो।
और अगर आ जाएगा क्या वाला सेंटेंस तो फिर क्या आ जाएगा, विल ही बी स्टडिंग टुमारो। इज इट क्लियर? कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लूरल नहीं वेखना, सिंगुलर नहीं वेखना, सब जगह की लिखना विल 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 विल। फ्यूचर इंडेफिनिट V1, फ्यूचर कंटिन्यूस V1 प्लस ING। और फ्यूचर परफेक्ट च की लगेगा, V3 लगनी है। और मैं तुहानू दस्सिया कि परफेक्ट दे विच V3 लगनी ही लगनी है। फ्यूचर परफेक्ट की आएगा इत्थे, विल हैव प्लस V3 तो की आएगा, मतलब फ्यूचर विच यह काम चल रहा होएगा। लाइक वो कल पढ़ाई कर रहा होएगा, या वो कल बाजार जा रहा होएगा, या जा रहे होंगे। की आ जाएगा, ही विल हैव, गो द इंग्लिश, गो द थर्ड फॉर्म गोन, ही विल हैव गोन टू मार्केट। टुमारो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। जो विल हैव आ गया तो मतलब फ्यूचर की गल हो रही है। ही विल हैव गोन टू मार्केट, they will have gone to market। और अगर नॉट वाले आ जाते कितना आएंगे, he will not have gone to market। इंटैरोगेटिव विच क्या हुन विल ते हैव दे विचकार लगना नोट। इंटैरोगेटिव च क्या आएगा, विल ही हैव, हैज नहीं लगना, ऐ नहीं कि ही है तो सिंगुलर लग जाएगा हैज, नो। और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट दा रूल है। फ्यूचर परफेक्ट सिर्फ विल हैव आना है। विल ही हैव गोन टू मार्केट। क्लियर है? सारे रूल्स क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो सारे रूल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस विच की सी, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। प्रेजेंट इनडेफिनेट विच V1 प्लस S और ES। नेगेटिव च डू नॉट डज नॉट प्लस V1। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया हैज है प्लस V3। और फिर पास्ट कंटिन्यूस आ गया वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। वॉज कि आ जाएगा सिंगुलर दे नाल, और वर कि आ जाएगा प्लूरल्स दे नाल। आई दे नाल भी हुन वॉज ही लगता है, आई वर नहीं लिखना, आई वॉज ही लिखना। पास्ट इंडेफिनेट सिंपल विच ओनली V2, नेगेटिव विच डिड नॉट प्लस V1। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, परफेक्ट सारे V3, कंटिन्यूस सारे V1 प्लस ING। उसके बाद आ गया फ्यूचर इंडेफिनेट, ओनली वी विल प्लस V1, कोई शैल नहीं लगाना, और कुछ नहीं लगाना, विल प्लस V1, whether it is singular or plural। फ्यूचर कंटिन्यूस will be प्लस V1 प्लस ING। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस V3, दैट्स इट। सिर्फ इन्ने टेंसेस करने तुसी IELTS वास्ते, स्पोकन इंग्लिश वास्ते, जो कुछ भी तुसी प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ इन्ने करने हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस करने की लोड़ नहीं, ठीक है। वो आप मतलब बैंक एग्जाम्स में ज़्यादा करते हैं, जिवें आप कुछ लैंग्वेज बोलते पे या लिखते पे वो ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, तो ठीक है। फिर चैनल को सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो तो शेयर कर दो। तो हुण जिहड़ी मेजर चीज़ मैं तुहानूं दसनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन किद्दां बनाईदा। मैं स्कूल जा रहा सी। हुण इहनूं बनाना किद्दां, बच्चों को यह नहीं पता लगता कि पहले जा रहा सी इहनूं लिखना है कि स्कूल लिखना है कि मैं लिखना है। सब तो पहले फर्स्ट वाले दी इंग्लिश लिखनी है, मैं मतलब आई। फिर आ जाओ पिछों दी, जा रहा सी मतलब पास्ट कंटिन्यूस की गल हो रही है, तो फिर की आएगा आई वॉज गोइंग। और स्कूल लिखा तो की आ जाएगा स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन च आना है। ओह खाना खा रही है, ओ खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। ओह दी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मतलब लड़की की गल हो रही है तो की आ जाएगा शी। रही है प्रेजेंट की गल है, शी इज। खान की गल है, ईटिंग V1 प्लस ING, शी इज ईटिंग खाना द फूड। ठीक है, समझ लग गई सेंटेंस फॉर्मेशन किद्दां करनी है। ये जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं दसनी सी, सो यह भी तुहानूं दस दित्ती है। तो हुण टेंसेस आई थिंक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया है। और कमेंट सैक्शन में जरूर दसना तुहानूं किद्दां दी लगी वीडियो, और तुहानूं सारे टेंसेस नाल दे नाल लर्न होए है कि नहीं होए, या कुछ होर तुसीं मतलब पढ़ना चाहते हो इसके बारे। ठीक है, तो फिर मिलांगे हुण नैक्सट वीडियो दे विच, ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।